municipal solid waste, the final functional element of solid waste management system. We already have covered the initial 5 functional elements of integrated solid waste management system, which were discussing the waste generation rates, the storage of waste, then the collection of that stored waste, then transportation of the collected waste towards the disposal site or the transfer station. Similarly, we had some processing and recovery facilities for diverting solid waste from the mainstream, that is the disposal site. Now, today we are going to discuss the disposal functional element, which is the sixth and the last functional element of an integrated solid waste management system. It says the background of landfilling the municipal solid waste. This is the brief overview of today's lecture. We would be having some definitions regarding the disposal and landfill site, then classifications of landfill sites, similarly how to design and construct the landfills for the municipality, siting considerations, similarly the reactions and processing processes which are like happening inside the landfill, and the pattern of gas generations. Similarly, the control of those gases which are being generated, and management of the landfill gases, leachate, which is having the composition of different concentrations of chemicals. Similarly, the water balance, movement, fate of the constituents, and the control of the leachate would also be discussed as a part of the disposal activity, and settlement of the landfills, environmental quality and monitoring of the landfill at the landfill site, and preliminary design for the landfill site. So all these with many other parameters or the uh, uh, stages would be discussed in this lecture. So here is the basic definition of a landfill. What is a landfill? It is a carefully designed structure built into or on top of the ground in which trash is separated from the area around it. It's a very general definition which is shared for common knowledge or common sense. अगर आप इसको share करते हैं at different platforms which are not linked with the engineering principles or the construction of the landfill design, even those platform can understand this definition easily. और इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ही जेनेरिक वर्ड्स में आपने इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया. तो जब आप इस डेफिनेशन को शेयर करेंगे तो आप अपना मैसेज क्लियरली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं टू दी ऑडियंस, और आप अपनी जो बात है उसको बहुत अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं. सिमिलरली आप आर्ग्यू अगर करते हैं कि लैंडफिल्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों इतनी ज़रूरी है लैंडफिल्स, तो लैंडफिल्स कंटेन गार्बेज एंड सर्व टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बिटवीन द वेस्ट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, स्पेशली ग्राउंड वाटर. तो इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि आप कंटामिनेशन को ट्रांसपोर्ट ना होने दें टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, स्पेशली ग्राउंड वाटर, ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को आप प्रोटेक्ट कर सकें, विच इज़ द बेसिक एम ऑफ एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और एन एनवायरमेंटल इंजीनियर. Once you have disposed of your trash inside the landfill, what happens to the trash in the landfill?
So landfills are not designed to break down the trash merely to bury it. That's because they contain minimal amounts of oxygen and moisture, which prevents trash from breaking down rapidly. अब वो एक चीज़ है ना कि जैसे आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं पहले कुछ के आप कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव स्टडीड कंपोस्टिंग इन अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर. उसमें हमने देखा था कि कंपोस्टिंग को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. ऑल्दो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हमने कुछ उसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स पढ़े थे कि जिनको हम अगर ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो हमारा प्रोसेस जो है वो ओवरऑल प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हम एक नेचुरल प्रोसेस को एक बहुत ही आइडियल टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. तो उसमें क्या था कि हमारा कंट्रोल था, हमारी इंटेंशन थी कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम जल्द से जल्द इसको डिकम्पोज करवा के इसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. सिमिलरली हमने एक और टेक्निक पढ़ी बायोगैस की, तो उसमें भी हमारा पर्पस ये था कि हम इसको एनारोबिक कंडीशंस में इसके सारे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे और इसको विद इन द गिवन टाइम फ्रेम जो कि उस टेक्निक का होता है उसमें हम इसको एक और प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड एज बायोगैस उसमें हम कन्वर्ट करेंगे इसको सॉलिड वेस्ट को. तो दोनों प्रोसेसेस में आपके पास एक एम आ गया, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया कि आप क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली. लेकिन जब वही वहाँ से जो वेस्ट बच गया और आप उसको लैंडफिल साइड पे लेके आ गए, आपने वहाँ पे डिस्पोज कर दिया, तो वहाँ पे आपका पर्पस ये नहीं है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे जो ब्रेक डाउन को कंडक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपके कंट्रोल में नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप फूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. तो इस वजह से आपका पर्पस ये नहीं, ऑल्दो इट हैपन्स ओवर देयर, बट वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नेचुरल प्रोसेस है उस हिसाब से वो होता है. लेकिन आपका पर्पस ये नहीं होता कि हम इसको यहाँ पे डिकम्पोज करवा के कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे, बल्कि आप वहाँ पे उसको उस चीज़ को लेके जाते हैं जो आपके माइंड में होता है कि हमने जस्ट इसको ब्री करना है, वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करना है, वहाँ पे हमने इसको फेंक के आ जाना है. इसी तरह एक और डिफरेंस भी मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि आप जब बायोगैस के लिए आप फीड स्टॉक डिज़ाइन कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, या आप कंपोस्टिंग के लिए कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि ये चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं, ये चीज़ इसमें नहीं फेंक सकते, इस चीज़ के साथ इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, इसके साथ इसकी लो हो जाएगी, इस चीज़ से ये टोटली हार्ड हो जाएगा ऑपरेशन, और इस चीज़ को तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर ही नहीं सकते. ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंसीडर करते थे क्योंकि हम कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाह रहे थे. जबकि यहाँ पे आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास जो भी चीज़ बच जाती है जो आपके काम की नहीं है एंड यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज वेस्ट, तो आप उसको वहाँ पे फेंक आते हैं. तो इस वजह से भी ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे जितनी भी चीज़ें फेंक के आते हैं वो सारी डिकम्पोजेबल नहीं है और उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो टाइमली नहीं होती. फॉर एग्जांपल आप उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक के अगर आते हैं, आपने रिकवरी नहीं की, आपने सेग्रीगेशन नहीं की, तो वो और ऑर्गेनिक मैटर साइड बाय साइड अगर आप फेंक के आ गए हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर तो विद इन फ्यू डेज डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक जो है वो फॉर मैनी ईयर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे वो डिस्पोज रहेगा. तो इसलिए पर्पस ये है वहाँ पे कि हम सिर्फ उसको अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट करके एनवायरनमेंट से थोड़ा सा उसको कह लेंगे सेफ एज पे रख के हम उसको स्टोर कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. So landfills are carefully filled, monitored and maintained while they are active and for up to 30 years after they are closed. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लैंडफिल जब आपने डिज़ाइन की, अप्रूवल्स ले ली, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया एंड आफ्टर ऑपरेटिंग दैट लैंडफिल साइट आपने अगर उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर दी, मॉनिटरिंग के बाद फिर आप उसको मेंटेन भी करते हैं कि आपका सिस्टम जो है सस्टेनेबल है.
ये सारी चीज़ें कंडक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं लैंडफिल साइट को। आप कहते हैं कि यहाँ पे जो इसकी लाइफ थी 25 ईयर्स थी या 30 ईयर्स थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें सफिशेंट स्पेस नहीं है टू अकोमोडेट फर्दर वेस्ट, तो इस वजह से यहाँ पे हम फर्दर वेस्ट रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि हम अब एक नई लैंडफिल साइट की तरफ जा रहे हैं, जो मे बी आपने उसके साथ पैरेलल में आपको जब पता चल गया कि अब इसके 2-3 साल रह गए हैं, 5-6 साल रह गए हैं, तो आपने एक नई लैंडफिल साइट जो है उसको भी डिज़ाइन करके कंस्ट्रक्ट करके रेडी कर लिया, और अब आप उसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं और इसको आपने क्लोज डाउन कर दिया। जब आपने इसको क्लोज डाउन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नॉट रिसीविंग वेस्ट ओवर हियर, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद भी 30 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक, या सिंपल फार्मूला आप ये याद रख लें कि जितने साल आपने उसको ऑपरेट किया, इतने साल तक आप उसकी जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखते हैं, और आप उसको देखते रहते हैं कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वंस यू हैव क्लोज डाउन और यू हैव डिक्लेयर्ड दैट दिस लैंडफिल साइट हैज़ बीन like completed and there is no sufficient space to accommodate further waste, and we are declaring it as a closed landfill, तो फिर उसको मॉनिटर करने का क्या पर्पस बनता है और क्या उसके पीछे क्या मतलब वो समझ से बाहर है। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और आपको फिर आइडिया होगा कि यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने लैंडफिल साइट को क्लोज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इट्स क्लोज नाउ, तो उसके बाद भी फिर आपने उसको मॉनिटर करना है। आपको ये फुल स्क्रीन ही नज़र आ रही है ना? ओके। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन अ डंप एंड अ लैंडफिल। तो बहुत सारे लोगों को अब तक जो हमारी डिस्कशंस थी उनसे आइडिया हो गया होगा कि लैंडफिल साइट क्या होती है या डंप साइट क्या होती है, लेकिन अगर किसी एक को भी कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको रिकॉल कर लेते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे अपने प्रोसेस की तरफ चलेंगे। A dump is an open hole in the ground where trash is buried and where animals often swarm. Dumps offer no environmental protection and are not regulated. अब आप ये इसको लिंक करें आप अपनी सराउंडिंग के साथ, पूरे पूरे मुल्क में, कि हमारे वेस्ट की डंपिंग हो रही है, ओपन डंपिंग हो रही है, या लैंडफिल में हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जो रेड कलर में ऊपर मेंशन की हुई है डंप की, ये बहुत ही ज़्यादा फिट आती है हमारे सिस्टम पे, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसमें हम वेस्ट को जहाँ भी दिल करे हम यहाँ, तो फिर उसने इसको लिमिट कर दिया कि इट्स एन ओपन होल इन द ग्राउंड वेयर ट्रैश इज बरीड। हम तो इतना भी नहीं करते कि हम उसको बरी कर रहे हैं, हम तो उसको ओपन ओपन डंपिंग, आई वुड लाइक टू कॉल इट ओपन डंपिंग। हम उसको बरी नहीं कर रहे हैं, हम उसको आइसोलेट नहीं कर रहे एनवायरनमेंट से। डंपिंग में भी इवन ये होता है कि आप एटलीस्ट उसके ऊपर कवर को डाल दें ताकि वो जो बारिश हो एटलीस्ट वो उससे बच जाए, अगर आप उसको उसके बॉटम से उसको नहीं कर रहे कवर। लेकिन ओपन डंपिंग है कि कुछ भी नहीं है, जस्ट कलेक्ट करें और जहाँ जगह खाली मिलती है शहर के बाहर वहाँ जाके आप उसको डिस्पोज ऑफ करके आ जाएं, फेंक के आ जाएं, डंप करके आ जाएं, रख के आ जाएं। एनवायरनमेंट से उठाया, एनवायरनमेंट में ही रख दिया है। बस फ़र्क इतना कि जो वो एक पूरे सिटी में फैला हुआ था, आपने पैसे लगाए, रिसोर्सेज लगाए, लोगों को लगाया, उसको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, गाड़ी लेके आया, आपने ट्रांसपोर्ट किया, वो सारा रेवेन्यू पूरे साल आपने उसके ऊपर लगाते रहे, और डिफरेंट रिमोट प्लेसेस से उसको कलेक्ट किया, और फिर उसको जाके एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया और एक जगह पे जाके उसका ढेर लगा दिया, ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा एक्टिव हो के वो डैमेज कर सके।
अदरवाइज जब वो जिस तरह से वो था उस तरह से उसकी इंटेंसिटी इतनी ना होती जितनी अब यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी वंस इट इज़ एट दैट स्टेज। वो स्टेजेस कब आती हैं, उनकी स्टेजेस क्या हैं वेस्ट की कन्वर्ट होने की, तो वो भी हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अगेंस्ट अगर आप लैंडफिल को डिस्कस करते हैं तो अ लैंडफिल इज केयरफुली डिजाइंड एंड मॉनिटर्ड स्ट्रक्चर दैट आइसोलेट्स ट्रैश फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज ग्राउंड वाटर, एयर एंड रेन. This isolation is accomplished with the use of a bottom liner and daily cover of soil at the top of the waste. तो बॉटम एंड टॉप दोनों जो हैं उनको आप कवर करते हैं। कवर जब करते हैं, नीचे लाइनर आप लगा देते हैं इनिशियली और उसके ऊपर आप वेस्ट प्लेस करते जाते हैं, और टॉप पे डेली बेसिस पे आप कवर करते हैं उसको विद द सॉइल। तो उससे क्या होता है कि वो आइसोलेशन हो जाती है। आइसोलेशन होती है एनवायरनमेंट से, तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जबकि फर्स्ट केस में हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं था, हम टोटली एक्सपोज कर रहे थे आर एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द कंटामिनेशन of contamination offered by the solid waste which was dumped in the environment. फिर एक और चीज़ आ जाती है लैंडफिल के बाद, सैनिटरी लैंडफिल। द टर्म सैनिटरी लैंडफिल मीन्स एन ऑपरेशन इन विच द वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ आर कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल एट द एंड ऑफ ईच डेज ऑपरेशन। आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। आप देखें कॉम्पैक्शन एक और चीज़ आपने ऐड कर दी है। इसके लिए अब क्या होगा, लैंडफिल साइट पे आपको अलग से कोई इक्विपमेंट चाहिए, कॉम्पैक्टर चाहिए, जिसका काम सिर्फ ये हो कि पूरे दिन में जितना वेस्ट आ रहा है उसको वो बस कॉन्टिन्यूसली कॉम्पैक्ट करता रहे। जब आपको पता हो कि वी हैव क्लोज्ड आवर ऑपरेशंस फॉर 25th ऑफ मई, तो उस एंड वाले ट्रिप पे जो लास्ट व्हीकल होगी उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद उसके ऊपर फिर और स्टाफ होगा जिसकी ड्यूटी ही यही होती होगी कि उसने रात को या जब भी आप क्लोज डाउन कर रहे हैं अपना ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस, तो उसने क्या करना है कि वहाँ उसके ऊपर सॉइल जो है वो कवर जो है वो अप्लाई कर देना है। तो अगर रात को बारिश होती भी है तो आपका वेस्ट जो है वो एक्सपोज नहीं होगा बारिश को, और इस तरह से जो है वो जो कंटामिनेशन है उसके उसका उसका चैनल जो है वो आप रोक लेते हैं। तो ये सैनिटरी लैंडफिल जो है उसमें ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। व्हेन द डिस्पोजल साइट हैज रीच्ड इट्स अल्टीमेट कैपेसिटी, दैट इज आफ्टर ऑल disposal operations have been completed, a final layer of 2 feet or more of cover material is applied. और फिर जब आप ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि हमारी लैंडफिल साइट की लाइफ कंप्लीट हो गई है और हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर आप 2 फीट का फाइनल कवर, मतलब रिलेटिवली आप वेरी थिकर कवर जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन है and it shows the structure of a municipal solid waste landfill. The arrows indicate the flow of the leachate. जो ब्लू कलर के एरोस हैं ये शो कर रहे हैं कि जो लिक्विड कंटेंट है, हैजर्डियस कंटेंट, जो आप कह लें कि सारे सॉलिड वेस्ट को एक जगह पे अकोमोडेट करने के बाद आपने कुछ अगर आपने कवर नहीं किया था या किसी तरफ से भी उसमें बारिश का पानी एंटर हो गया है, इसी तरह कुछ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर बिल्ट इन था मॉइस्चर कंटेंट, तो आपने उसको जब कॉम्पैक्ट किया तो वो लूज हुआ और वो भी वो नीचे लीच डाउन हो रहा है। तो ये सारा जब लीच डाउन होके नीचे आता है तो इसको लीचेट का नाम दिया जाता है। ये लिक्विड कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस होता है, बहुत हाई सीओडी होती है इसकी, एनबीओडी होती है, और इसी तरह बाकी जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं इसके बहुत हाई होते हैं। एंड देयर इज़ एन इमेंस नीड टू कलेक्ट दिस लीचेट effectively and treat it accordingly so that it can be discharged to the environment, and it must not contain hazardous content in it so that the environment is protected. तो अब आप यहाँ इस फिगर में भी अगर देखें
इसकी भी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये सारा सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड्स में एक मॉडल डेवलप हो जाए। बाद में जब हम इसको थियोरेटिकली पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाए कि हाउ इट इज़ बीइंग जनरेटेड एंड कलेक्टेड एंड ट्रीटेड। तो ये आपकी लैंडफिल साइट पे एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह की कोई चीज़ जो है वो आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि आपने पहले कलेक्शन नेटवर्क बनाना है। ये जहाँ जहाँ से आ रहा है नीचे, अब ये वेस्ट में देखें, वेस्ट आपने ऊपर आपने सारा वेस्ट रखा हुआ है, तो उसमें से कहाँ से किधर से वेस्ट में से पानी जो है लीच डाउन करके नीचे जा रहा है, आपको नहीं आइडिया। तो आपने इस चीज़ को प्लान करना है, वो कैसे करना है ये भी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा मैं। और फिर इसको नीचे कलेक्ट करना है। यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद ये एक सेंट्रल जो फैसिलिटी है उसकी तरफ लेके जाएंगे, वहाँ पे इसको आप ट्रीट करेंगे और इस पानी को आप फर्दर जो है वो अप्लाई कर देंगे टू दी वेजिटेशन, या इसको इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देंगे या डिस्चार्ज कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू ट्रीट दिस लीच इट एंड वुड लाइक वी वुड लाइक टू अवॉइड दिस ट्रीटमेंट कॉस्ट, तो आप इसको कलेक्ट करके किसी जगह पे ऑफ साइट ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं वो भी कॉन्टीन्यूसली हमारे ऊपर एक बर्डन है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कलेक्ट कर, यहाँ से आपने इसको सारे को यहाँ पे कलेक्ट किया और फिर इसको वापस रिसर्कुलेट कर दें सिस्टम के ऊपर। तो जितना वेस्ट आपका ऊपर डेली आ रहा था उसके ऊपर आप इसको जब रिसर्कुलेट करेंगे, उससे क्या होगा कि चूंकि ये लिक्विड है और इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट है बीओडी एंड सीओडी का, और बीओडी एंड सीओडी आर ऑर्गेनिक कंटेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंटेंट आप ऐड कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल वेस्ट हो या लीचिट हो, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो जो बैक्टीरिया होंगे उनको ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। जब उनको ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे वुड बी मोर एक्टिव टू decompose the existing solid waste, and this would be like creating more room as a result of decomposition। आपकी जितनी ज़्यादा decomposition होगी उतना ज़्यादा आपको वेस्ट को प्लेस करने के लिए ज़्यादा जगह जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो ये तो साइकिल है इसका लीचिट का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने इसको लेबल किया हुआ है, आप काइंडली इस चीज़ को जो है वो देखिएगा। ये सारी डेफिनेशंस जो हैं, ये सारे जो लेबल की हुई हैं चीज़ें, ये हमें पढ़नी है आगे डिटेल में। अगर मैं आपको इनको एक ब्रीफ जो है वो उसमें बता दूं कि जैसे ये हमारे पास ग्राउंड वाटर है, ये हमारे पास कॉम्पैक्टेड क्ले है जो हमारा क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, या हमारा एक्वीफर के ऊपर की जो जगह है, विडोज जोन भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये हमारे पास वो सेक्शन आ जाता है। फिर उसके ऊपर आपके पास प्लास्टिक लाइनर है। आप कहते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक लाइनर हम बिछा देते हैं ताकि ये लीचिट जो है अगर किसी तरह से यहाँ ई को भी क्रॉस करके सी की तरफ आता है तो फिर हम इसको जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे रोक सकें। यहाँ से अगर लीच डाउन होता है तो ये इसको रोक ले। अगर हम इसके नीचे कुछ भी नहीं रखते तो ये डायरेक्टली कंटामिनेट करेगा टू दी ग्राउंड वाटर, एंड उससे फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे और ह्यूमन हेल्थ जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। डी जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली लीचेट कलेक्शन पाइप है, जो सेंट्रल पाइप है, और ये एक जगह पे इसको कलेक्ट करके बाहर लेके आ रहा है, लैंडफिल साइट के बाहर लेके आ रहा है। जो हमारे पास ई है, ये जियो टेक्सटाइल हमारे पास मैट है, मतलब ये भी सॉइल का ही कवर है इस प्लास्टिक कवर के ऊपर। तो प्लास्टिक कवर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सॉइल कवर्स, वन इज नेचुरल एंड द अदर वन इज सिंथेटिक। उसके बाद आपके पास एफ आ जाता है, तो ये आपने ग्रेवल यहाँ पे प्लेस कर दिए ताकि आपका जो लीचिट आ रहा है वो इन ग्रेवल्स के अंदर जो पोरोसिटी लेवल होगा वो ज़्यादा होगा और वो तेज़ी से लीच डाउन होके कलेक्ट हो जाएगा, रादर के वो यहाँ पे सारा इस जो आपका जियो टेक्सटाइल मैट था उसको सारे को कंटामिनेट भी करता और उसमें सारे पोरोसिटी जो है वो लो होती और वो यहीं पे ही सारा पाइल अप होता जाता। इसी तरह अगर आप देखें जी को, तो ड्रेनेज लेयर है ये आपकी, टॉप पे आप ड्रेनेज लेयर देते हैं, डेली कवर देते हैं ताकि अगर बारिश हो जाए तो आपकी बारिश जो है वो ड्रेन आउट हो जाए और सॉलिड वेस्ट के साथ उसका कांटेक्ट ना हो।
एच जो है वो सॉइल लेयर है जो आप डेली सॉइल कवर देंगे। आई जो है वो आपका सॉइल आप कह लें कि ओल्ड सेल्स हैं जो आपने इससे पहले आपने कवर कर दिए हैं और अब वो कंप्लीटेड हैं और वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो आपके पास जे है वो न्यू सेल्स हैं जो आप फर्दर आगे लैंडफिल साइट जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं और डिस्पोज करते जा रहे हैं वेस्ट को। इसी तरह के जो है इट इज़ द लीचिड पॉन्ड जहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हैं और इसको जो है वो लीचिड जो है उसको आप एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता करता जाऊँ कि जब आप यहाँ पे ये इट्स क्वाइट लाइक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि जब मैंने बात की कि अगर आपका सॉलिड वेस्ट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्ट्रीट्स में पड़ा है और आप वहाँ पे अगर वो पड़ा रहता तो मे बी उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना होता जितना आपने उसको कलेक्ट करके ओपन डंपिंग की फॉर्म में एक जगह पे जाके डिस्पोज ऑफ करने से एक्सपोज किया। इसी तरह से इस छोटे से मॉडल को देखें, यहाँ पे भी मे बी अगर आप इसको ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ से लीच डाउन हो रहा है, अगर आप अगर ये सारे कवर्स नहीं देते, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप ये सारे कवर्स नहीं देते जो कि लैंडफिल साइट के बेसिक जो रूल्स हैं उनको वो इंश्योर करते हैं, तो ये सारे के सारे ड्रॉप्स जो हैं इंडिविजुअली इनको पास डाउन करना पड़ेगा इस सारे सिस्टम को, जो क्रस्ट का या बी जो है इस पोर्शन को, इस इस पार्ट को इंडिविजुअली क्रॉस करना पड़ेगा, इस पार्ट को इंडिविजुअली, इस पार्ट को इंडिविजुअली, इस पार्ट को, और हर पार्ट को अपना यहाँ से चैनल बना के नीचे इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब आपने इसको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल लोकेशन पे आपने इसको स्टोर किया है, तो ये याद रखें कि आपकी ये अगर यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे आप इसको इतना हैजर्डियस कंसीडर कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे 3-4 लाइनर बिछा दिए बॉटम में, तो जब ये सारा कलेक्ट होके एक जगह पे आएगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस पॉन्ड के लाइनर्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉन्ड की बॉटम पे कितने लाइनर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये कलेक्ट हो गया है और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, अब ये ज़्यादा हैजर्डियस है, और अगर इसके नीचे आपने बॉटम पे प्रॉपर कवरेज नहीं दी हुई तो फिर आप जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट होने से बचा नहीं सकते। आई थिंक आपको इस फिगर का आइडिया हो गया होगा। This along with many other figures will be another tool to make you understand regarding the construction, operation, maintenance and sustainability of a solid waste landfill site. ये एक और क्लोज व्यू है जिसमें जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो पैरामीटर्स हाईलाइट किए गए थे उनके अलावा कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दिस इज़ द लाइनर सेटअप जो आपने ये ब्लैक कलर का जो है ये टॉप और बॉटम पे लाइनर जो इंस्टॉल किए थे डिफरेंट, ये वो हैं सारे। ये आपके पास वाइट कलर का जो पाइप है ये आपका लीचेट कलेक्शन सिस्टम है। इस वेस्ट को कम्पैक्ट किया, जितना लीचेट जनरेट हुआ वो यहाँ पे कलेक्ट हुआ और आपने इसको यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दी इसकी। ये तो हो गया लिक्विड कंटेंट। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रही है उससे हम कहते हैं कि बायोगैस बनती है, एनारोबिक है ना, ये क्लोज वेसल बन गई है। अब आपने इसको ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद है, ये सारा एनारोबिक कंडीशंस होंगी, अंदर बैक्टीरिया होंगे, वो डिकम्पोज करेंगे तो बायोगैस बनेगी। बायोगैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन अलॉन्ग विद अदर ट्रेस गैसेस। तो क्या होगा कि आपकी ये गैसेस जो हैं इनको एस्केप चाहिए, इनको तो बाहर निकलना चाहिए। अब आपने ऊपर कवर दिया हुआ है, डेली बेसिस पे देते आए हैं तो कहीं से स्केप है ही नहीं। एक कवर को, एक डेली को निकाल के आगे आता है तो फिर स्टक हो जाता है, इधर से निकाल के 3-4-10-15-20 1 साल सारा कुछ करने के बाद वो अगर यहाँ पे
एस्केप नहीं मिलता या मिल जाता है तो आपने फाइनल कवर 2 फीट का दिया हुआ है, तो वहाँ से कैसे करेगा? तो फिर क्या होता है कि आप खुद देते हैं एस्केप उसको बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस वेंट्स, जैसे मीथेन गैस रिकवरी सिस्टम, ये आप डिफरेंट जगहों पे इस तरह इंस्टॉल करते हैं और उसको एक चैनल मिल जाता है और वो गैस जो है एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरह अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ पे वेल टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर आपको नज़र आएगा। अगर आपका ग्राउंड वाटर यहाँ से फ्लो करके इस तरफ जा रहा है तो आप इससे पहले भी और इसके बाद भी एक वेल इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो है उसकी सैम्पलिंग ये बताएगी कि एग्जिस्टिंग क्वालिटी क्या थी वाटर की, और इसके बाद वाला जो होगा उसकी सैम्पलिंग यहाँ से करेंगे आप, उसकी सैम्पलिंग बताएगी कि अगर ये लैंडफिल साइट के नीचे से पानी गुजर के आया है तो इसके गुजरने के बाद इसमें कोई कंटामिनेशन ऐड तो नहीं हुई और इसकी वजह से कोई कंटामिनेटेड मटेरियल तो नहीं इसमें आ गया जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनिशिएट कर सकता है या एक्सेलरेट कर सकता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये लैंडफिल साइट का पार्ट है कि ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल्स हों और आपको पता हो कि ग्राउंड वाटर फ्लो किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, तो आप उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो है वो मॉनिटरिंग वेल्स इंस्टॉल करते हैं। तो अब ये देखें, 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। एक मॉनिटरिंग वेल है, एक गैस को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम है और एक आपका लीचिट कलेक्शन सिस्टम है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। जी कुरैशी साहब, क्या आपका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है जी, आपने एज हैंड रेज किया हुआ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। या यस सर। सर मैंने इसमें जो है वो एडिशन की या कह लें कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बताना चाह रहा था कि ई गार्ड एक कंपनी है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है। सर उनके जो ऑनर हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो लीचेट का मैंने उनसे पूछा था कि आप इसका क्या करते हैं? उन्होंने सर मुझे बताया था कि हम इसको दोबारा स्प्रे कर देते हैं अपने उसी जो वेस्ट हम लोग कलेक्ट करके आते हैं और उसको हम लोग 45 डेज का एक उनका होता है पीरियड जिसमें वो उसको रखते हैं ताकि जिसने आपने बताया उसमें जो होता है वो मीन्स स्पीड अप हो जाता है सारे मामलात। सर उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन जो बताया था सर वो मुझे जिससे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारा केपीके में एक्सपेरिमेंट हुआ है और हम लोगों ने ये लीचेड में जिसमें आपने हमें बताया कि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। हमने इसको एज़ एन फर्टिलाइज़र तौर यूज़ किया है। मगर उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में ये देखा है कि हम लोग में जितना हम लेचिड डाल रहे हैं, हम अगर उतनी ही क्वांटिटी में वाटर डालेंगे तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट उसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे, तो वो प्लांट को इवन बर्न आउट कर सकता है, उसको जला सकता है इवन क्योंकि ये गैर से बहुत टॉक्सिक होता है। जी, तो आपकी तरफ से एडिशन ये है कि along with the recirculation we can use it as a fertilizer content as well, यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एंड वैल्यूएबल कमेंट। और इसके साथ साथ आपने हमें एक और चीज़ भी बता दी कि कोई कंपनी इस तरह से काम कर रही है, ऑल्दो आई नो दैट कंपनी एंड यू हैव शेयर्ड एट दिस प्लेटफॉर्म, तो आपके सारे कोलीग्स को भी पता चल गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तीसरी ये चीज़ कि आपने अपनी एफर्ट भी इसमें शेयर कर दी कि यू हैव मेट दोज पर्सन्स और द पीपल हु आर वर्किंग इन द रियल फील्ड सिनारियो, और वो भी आपने शेयर कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपने एफर्ट की और यहाँ क्लास में शेयर भी कर दी। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट। कैन वी मूव ऑन टू द लेक्चर प्लीज़? यस सर। ऑल राइट। I would not comment on the usage of leachate as a fertilizer at the moment because we are at very basic stage of our disposal functional element, and by the time you would be understanding things happening inside the landfill site, I am trying to
bring all the things at a single platform through a proper channel and a stepwise strategy. तो जैसे जैसे आपको ये लैंडफिल साइट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी ना, तो उसके साथ फिर जब आप इस कंटेंट पे पहुंचेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस वक्त मुझे रिकॉल करवाइएगा आपका ये कमेंट, तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जब हम लीचिट की करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे इसको डिस्कस करना भी ज़्यादा सूटेबल होगा। अभी आपने यहाँ पे शेयर कर दिया तो इट्स गुड, और हम इसको जो है डिले करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन को डिले करते हैं जब तक हम उस सेक्शन में नहीं पहुंच जाते। ठीक है अली? ओके सर। Okay. Sanitary landfill, as I already have discussed, that the engineering method of disposing of solid waste on land in a manner that protects public health and environment. तो इसमें जो चीज़ याद करने वाली है वो engineering method है और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड। ठीक है, तो ये आपने इंजीनियरिंग मेथड लगाने हैं सॉलिड वेस्ट को डंप करने के लिए, ताकि पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को आप प्रोटेक्ट कर सकें। लैंड फिलिंग इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑफ इनकमिंग वेस्ट स्ट्रीम, प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द वेस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लैंडफिल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़। अब ये एक लाइन में उसने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे ये बता दिया कि ये भी इन्वायरमेंटल कंट्रोल को मॉनिटर कर रही है, ये गैसेस भी इन्वायरमेंटल कंट्रोल को मॉनिटर कर रही हैं, ये लीचेट कलेक्शन सिस्टम भी इन्वायरमेंटल कंट्रोल को मॉनिटर कर रहा है। तो बजाय इसके कि वो कहता है वेल इंस्टॉल करें, वेंट्स इंस्टॉल करें, लीचेट कलेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करें, उसने कह दिया कि लैंडफिल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़। तो ये फैसिलिटीज़ के वर्ड में उसने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बन गई कि वहाँ पे आपके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, आप करते क्या क्या हैं बेसिकली लैंडफिल साइट पे। सैनिटरी लैंडफिल्स आर साइट्स वेयर वेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट अंटिल इट इज सेफ। उसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास सेल की। व्हाट इज सेल in terms of landfill site? Volume of material which is solid waste and daily cover placed in a landfill during a given operating period, usually one day. तो डेली बेसिस पे आप जितना सॉलिड वेस्ट और उसको कवर करने के लिए सॉइल कवर। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये जो डेफिनेशंस हमने स्टार्ट की हैं, दीज आर नॉट डीलिंग विद दी ओपन डंपिंग, वी आर डिस्कसिंग दी लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइड में भी सेंट्री लैंडफिल साइट, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं और इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू सेंट्री लैंडफिल। तो हम लैंडफिल साइट की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कह लें कि होती नहीं हैं। ठीक है, तो आपके लिए फिर ये ऐसा ना हो कि आप कहें कि यार हमने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ होता हुआ। तो ये आपने करना है, प्रपोज करना है, आपने ये सिस्टम में अपने सिटीज़ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है। ऐसे नहीं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपकी जॉब लग जाए तब आप करवाएं, बल्कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उनको आप अर्ज करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप इस सिस्टम की तरफ आएँ। आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप कहेंगे तो हमारा पाकिस्तान में तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो नेचुरली ये सारा काम कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो आपका मटेरियल है, अब इसने मटेरियल इस वजह से कह दिया कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के साथ साथ सॉइल भी है। ठीक है, अदरवाइज ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट भी कह सकता था या वेस्ट भी कह सकता था, लेकिन ये दो चीज़ें हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। तो डेली बेसिस पे इन दोनों की जितनी क्वांटिटी आप एक लैंडफिल साइट में रखते हैं, प्लेस करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, उसको आप एक सेल कहते हैं। तो आप एक दिन की टनेज जो है, अगर हम कराची की बात करते हैं और हम कहते हैं कि कराची इज़ ऑपरेटिंग एट 100% एफिशिएंसी,
और इट्स वेस्ट जनरेशन इज 11,000 टन्स पर डे, और इट्स जो इसकी 100% एफिशिएंसी थी उसके अगेंस्ट अब यह 11,000 का 11,000 टन ही हमने इसका वो कर लिया है, आप कह लें कि कलेक्ट कर लिया है, ट्रांसपोर्ट कर लिया है, डिस्पोज करने के लिए हमने इसको वहाँ पे लैंडफिल साइट में जाके डिस्पोज कर दिया। अब इसके ऊपर हमने 1 टन जो है वो कवर भी डाल दिया है सॉइल का, तो उस ओवरऑल जो हमारे पास वज़न हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, दैट वुड बी अराउंड 12,000 टन्स। ठीक है, तो ये एक रियल एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सेल क्या होगा। वो 12,000 जो आपका मटेरियल है वो एक सेल है आपका, एक दिन का ऑपरेशन, एक दिन का मटेरियल एक सेल कहलाएगा। डेली कवर जो उस सेल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 15 टू 30 सेंटीमीटर ऑफ नेटिव सॉइल। अब नेटिव सॉइल पाकिस्तान में तो इसका मसला नहीं है कि आप जहाँ पे वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो सकती है, अदरवाइज आप किसी भी जगह से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रीजन है तो उस रीजन में आप वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो नियर बाय एरिया से आप उसको ला सकते हैं, वेस्ट जो आपकी सॉइल है उसको आप वहाँ पे ला सकते हैं कवर मटेरियल के तौर पे। और अल्टरनेटिव मटेरियल सच एज कंपोस्ट। अब देखें यहाँ पे आपको एक और चीज़ आ गई, मैंने उस वक्त शेयर किया था कि हम जाके सेंट्रल लैंडफिल वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि कंपोस्ट के और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपने आउट ऑफ योर 11,000 टन्स आपने 4,000 टन्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए कंपोस्ट में। अब 4,000 टन्स जब कंपोस्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो उसमें आप कह लें कि 2 to 3,000 जो है वो आपका वेस्ट है। अगर वो प्रोडक्ट है आपकी तो आपसे कोई ख़रीद नहीं रहा। आप डेली बेसिस पे 2,000 टन आप किधर लेके जाएंगे, वो कौन लेगा, क्या करेंगे उसका। तो ये एक बड़ा अच्छा उसका यूटिलाइजेशन है कि आपने वेस्ट को कन्वर्ट किया कंपोस्ट में। अब उसको जितनी आप इस्तेमाल कर सकते थे इस्तेमाल की, एडिशनल या सरप्लस क्वांटिटी जो है वो अगर आपसे कोई ख़रीद नहीं रहा और एट द मोमेंट आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तो आप उसको एज ए डेली कवर मटेरियल आप उसको अप्लाई कर दें, तो वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसको आप अप्लाई कर देंगे तो वो एज ए कवर जो है वो हेल्प कर सकता है आपको। Compost that are applied to the working phases of the landfill at the end of each operating period, and the objectives of daily cover are ऑब्जेक्टिव्स हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल ब्लोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये एक उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि अगर तेज़ हवा चलती है तो वेस्ट जो है वो ब्लो नहीं करेगा टुवर्ड्स दी पॉपुलेशन और कम्युनिटी। रिड्यूस अट्रैक्शन ऑफ वेस्ट टू बर्ड्स, तो बर्ड्स भी वहाँ पे जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, जो कि एक वेक्टर के तौर पे, डिजीज कैरियर वेक्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं लेटर ऑन। टू प्रिवेंट रैट्स, फ्लाइज एंड अदर डिजीज वेक्टर्स फ्रॉम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द लैंडफिल। जब कवर होगा तो इन सारी चीज़ों से भी जान छूट जाएगी और इसी तरह से इनसे जब जान छूटेगी तो बीमारियां कम फैलेंगी क्योंकि ये वेक्टर हैं। टू कंट्रोल एंट्री ऑफ वाटर इनटू द लैंडफिल ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी उस वेस्ट के साथ इंटरेक्ट ना करे, इसलिए हम उसके ऊपर डेली कवर मटेरियल डाल देते हैं। तो अब देखें इसके साथ साथ और कितने बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू सप्रेस दी ओडोर्स, आप ओडोर प्रॉब्लम भी आपका डेली बेसिस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी ओडोर तो टोटली सिस्टम में से इवैक्यूएट हो जाएगी। तो ये बेसिकली डेली कवर की थिकनेस, मटेरियल और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आ जाती है लिफ्ट। इट्स अ कंप्लीट लेयर ऑफ सेल्स ओवर द एक्टिव एरिया ऑफ द लैंडफिल। अगर आपने यूईटी टेक्सला के कैंपस के जितनी आपने लैंडफिल डिज़ाइन की है साइट, एक साइड से आप ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के पीछे जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, उस तरफ से आप जा रहे हैं मस्जिद की तरफ ऑपरेट करते हुए, ठीक है। तो जो एक
लिफ्ट होगी ना, वो आपकी क्या लिफ्ट लिफ्ट आप किसको कहेंगे कि जब आपने एक सेल स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉर्नर और उन सेल्स को आप आगे पूरे एरिया के ऊपर आपने प्लेस कर दिया, तो जब आपका वो डिफरेंट सेल्स जो हैं पूरे एरिया को कवर कर चुके हैं, तो फिर आप उस पूरे कॉम्बिनेशन को, जो डिफरेंट सेल्स का पूरा कॉम्बिनेशन है एट द एंटायर एरिया, उसको आप एक लिफ्ट कहेंगे। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ फिगर में, उससे आपको ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो सेल बेसिकली एक दिन का वेस्ट है और लिफ्ट जो है वो कई दिनों का वेस्ट है, लेकिन जितना भी एरिया है लैंडफिल का उस सारे को उसने ढांप लिया हो, उसको आप लिफ्ट कहेंगे। उसके ऊपर कवर मटेरियल भी होगा डेली वाला, उसको आपने कॉम्पैक्ट भी किया होगा। उसके बाद फिर आप जो अगला सेल होगा उसके ऊपर आप उसको रखेंगे और उसके बाद दूसरी लिफ्ट आप उसके ऊपर बनाएंगे। तो आप ये स्टोरीज कह लें, बिल्डिंग की जैसे स्टोरीज होती हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसी तरह से आपने ग्राउंड को जब कवर कर लिया तो ग्राउंड फ्लोर इज योर फर्स्ट लिफ्ट, फर्स्ट फ्लोर इज योर सेकंड लिफ्ट, सेकंड फ्लोर इज योर थर्ड लिफ्ट। तो ये लिफ्ट्स होंगी, ठीक है, और एक लिफ्ट में मल्टीपल सेल्स होंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है बेंच और टेरेसेस, ये क्या होता है? जब आप एक लिफ्ट आपने बनाई है, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर आपने बना लिया है, उसके बाद जब आपने अगला सेल उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के तौर पे या सेकंड लिफ्ट के को स्टार्ट करने के लिए आपने सेल जो है वो प्लेस करना है ना, तो उसके लिए आपने ऐसा नहीं करना कि जहाँ से आपने लास्ट सेल स्टार्ट किया था वहीं पे उसी के ऊपर एज इट इज़ आप उसको स्टार्ट करें, बल्कि आपने कुछ जगह छोड़ देनी है। वो जगह जब छोड़ेंगे तो उसको आप बेंच कहेंगे या टेरेस कहेंगे, और आपकी जो लैंडफिल साइट है वो एक आप कह लें कि पिरामिड की तरह ऊपर की तरफ जाएगी। आई वुड लाइक टू शेयर द पिक्चर ऑफ, ये जैसे पिरामिड की तरह ऊपर जा रही है। अब ये थोड़ी स्लोप है, आप यहाँ पे टेरेसेस भी दे सकते हैं, स्टेप भी दे सकते हैं जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इस फिगर को देखें, तो यहाँ पे भी आप जो है वो ये एक कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर जब दूसरी लेयर लेके आएंगे, दूसरी आप इसके ऊपर लिफ्ट बनाएंगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसने इसको इंक्लाइंड बनाया हुआ, तो ये टेरेसेस आपने देने होते हैं। और इन टेरेसेस का पर्पस ये होता है कि एक तो आप स्लोप स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। स्टेबिलिटी क्या है स्लोप की, कि आपने अगर एक दूसरे के ऊपर ही सेल्स बनाते गए आप, तो जो वेरी फर्स्ट सेल होगा, जब कभी भी वो सारे का सारा डिकम्पोज हो जाएगा तो ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी स्ट्रक्चर की। अगर आपने टेरेस दिया होगा तो फिर आपकी स्टेबिलिटी इस तरह से रहेगी कि आपके हर लिफ्ट के बाद आपने टेरेस दिया है और आपका जो ऊपर वाली जो लिफ्ट है वो छोटी है एज कंपेयर टू दी बेसिक, या जो बॉटम में जो है वो उस लिफ्ट से छोटी है। इसकी पिक्चर्स भी मैं आगे शेयर करता हूँ, तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेबिलिटी की जो एग्जांपल है वो मैंने शेयर किया। फॉर प्लेसमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्रेनेज चैनल्स, अब ये दूसरा यूटिलाइजेशन इसका है कि आप सरफेस वाटर जो आपकी रेनफॉल हो रही है उस लैंडफिल साइट के एरिया पे, उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है उसको आपने कहीं ना कहीं ड्रेनेज भी तो देना है, अदरवाइज वो लीच डाउन कर जाएगा, अंदर जाएगा तो फिर वो इंटरैक्ट करेगा सॉलिड वेस्ट के साथ, सॉलिड वेस्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम है। हमने तो उसको बचाना है, तो इस वजह से फिर हम उसको सरफेस वाटर ड्रेनेज जब देना चाहते हैं तो वो भी उन टेरेसेस के ऊपर हम दे सकते हैं। फॉर लोकेशन ऑफ गैस रिकवरी पाइप्स, एक लिफ्ट के अंदर जब आपने उसको कंप्लीट कर दिया है तो उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसकी अगेंस्ट जो गैसेस हैं उनको बाहर डिस्चार्ज करने के लिए भी तो कोई आपने चैनल देना है। वो चैनल्स भी आप इन टेरेसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
अदरवाइज आपको इस तरह करके एक सिंगल जो चैनल है उसके थ्रू तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जैसे एक सिंगल चैनल है, आपको हर एक लिफ्ट के ऊपर हर एक आप कह लें कि टेरेस के ऊपर अलग से जो है वो गैस वेंट देनी है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी की सारी जो हैं वो डिफरेंट टेरेसेस के ऊपर अप्लाई होंगी, इंस्टॉल होंगी और वहाँ पे वो एक्टिव होंगी फॉर दी रिकवरी ऑफ गैस। तो ये इसके बेसिक पर्पसेस हैं। एक तो स्लिप ना हो, एक ड्रेनेज के लिए चैनल दे दें, एक गैस वेंट्स इंस्टॉल कर दें फॉर द कलेक्शन ऑफ द गैस। उसके बाद फाइनल कवर आ जाता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। इट इज़ अप्लाइड टू द इंटायर लैंडफिल सरफेस आफ्टर ऑल द लैंडफिलिंग ऑपरेशंस आर कंप्लीट। It usually consists of multiple layers of soil and geomembranes, and the objectives are to enhance surface drainage, again, intercept percolating water, and support surface vegetation. तो जब आपने फाइनल कवर डाल दिया, इसका मतलब है कि लैंडफिल आपने क्लोज डाउन कर दिए। जब क्लोज डाउन कर दिए तो उसके ऊपर आप सरफेस के ऊपर वेजिटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 से 3 फीट का जो है उसके ऊपर सॉइल का कवर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद लीचेट आ जाता है। इट इज़ द लिक्विड, मैंने बहुत डिटेल से ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसको हम जस्ट पढ़ लेते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप बाद में भी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Leachate is the liquid that collects at the bottom of a landfill, includes water already contained in waste as well as infiltration ground water. Landfill closure क्या है? Steps that must be taken to control and secure a landfill site once the filling operation has been completed. पोस्ट क्लोजर केयर क्या है? क्लोज डाउन करने के बाद इसकी केयर क्या है लैंडफिल की? इट रेफर्स टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीटेड लैंडफिल, टिपिकली 30 to 50 ईयर्स। जब आपने लैंडफिल को क्लोज डाउन कर दिया तो उसके बाद भी इतने साल वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर बॉटम लाइनर की तरफ आ जाएं। 10th डेफिनेशन, the bottom liner separates and prevents the buried waste from coming in contact with the underlying natural soils and groundwater. In municipal solid waste landfills, the bottom liners are generally constructed during some type of durable puncture resistant synthetic plastic, HDPE, high density polyethylene ranging from 30 to 100 mils thick. The plastic liners may also be designed with a combination of compacted clay soils along with systematic synthetic plastic. तो ये आपके बॉटम लाइनर है, इसको जितना ज़्यादा मजबूत रखेंगे, जितना ज़्यादा रिलायबल रखेंगे, प्लास्टिक एंड सॉइल का कॉम्बिनेशन रखेंगे, सॉइल को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर लेंगे, उसकी पोरोसिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम कर लेंगे। आप देखें कॉम्पैक्ट करने से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे आपकी रॉक होती है उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, जबकि आपके डेजर्ट्स में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे कि आपकी जो सॉइल है बॉटम में वो रॉक की तरह हो जाए, तो फिर आपका लीचेट जो है वो इजीली परकुलेट कर सकता है। सिमिलरली आप प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से और ज़्यादा उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब जब आपने लैंडफिल डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले ही आपको बॉटम लाइनर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार लीचेट नीचे चला गया तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है कि कहाँ से चला गया और कैसे इसको मैं रोकूं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले ही अपने कंट्रोल्स जो हैं उनको अप्लाई कर लें। फिर लीचेट कलेक्शन सिस्टम आ जाता है कि लीचेट जनरेट तो हो गया, अब इसको हम कलेक्ट कैसे करें? हमें क्या पता, इतनी बढ़िया एक तरफ हम कह रहे हैं कि यूईटी टेक्सला के कैंपस की जितनी हम लैंडफिल साइट करेंगे, हमें क्या पता कि सिविल डिपार्टमेंट के पास लीचेट नीचे आएगा,
इलेक्ट्रिकल के पास आएगा, इंडस्ट्रियल के पास आएगा, एनवायरमेंटल के पास आएगा, डिस्पेंसरी के पास आएगा, कॉलोनी की तरफ आएगा, मस्जिद के पास आएगा, एमपी हॉल की तरफ आएगा, किसी हॉस्टल के पास आएगा, किसी गेट की तरफ जाएगा। क्या पता लीचेट कलेक्शन सिस्टम क्या है। तो यही तो सैनिटरी लैंडफिल डिज़ाइन जो होता है वो आपको डिज़ाइन करना होता है। अब आप देखेंगे उसका आपके पास हल क्या है। लैंडफिल साइट आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि आप किस तरह का वेस्ट वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या डोमेस्टिक वेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या हैजर्डियस वेस्ट भी रिसीव कर रहे हैं। जिस टाइप का भी वेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एट पैराडाइज कैफे साइट। Construction and demolition waste would be disposed of at the telecom building site। ठीक है, तो ये जो आपकी दोनों साइट्स हैं अब ये दोनों चेंज हैं। अब आपको पता है कि जब मलबा आएगा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आएगा, उसको आपने इस तरफ आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। जब ऑर्गेनिक वेस्ट आया, डिकम्पोजिबल वेस्ट आया, वेट वेस्ट आया, उसको आपने वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आपने ये प्लान किया है। तो जब ये प्लान किया है तो ये प्लानिंग आपने ऑपरेशन से पहले की हुई है, डिज़ाइनिंग से पहले की हुई है, इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन से पहले की हुई है। तो जब आपने प्लान ही ये किया कि पैराडाइज कैफ़े वाली जगह पे आप ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो आप उसी जगह के नीचे फिर लीचिड कलेक्शन सेटअप लगाएंगे ना। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट वाले के नीचे तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे भी अगर लगा दिया तो वहाँ पे क्या श्योरिटी है कि सारे का सारा वेस्ट जो है वो नीचे कलेक्ट होगा लीचिट। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो उसको कवर करने के लिए आप नीचे नेटवर्क बिछा देते हैं पूरा एक पाइप्स का। और वो पाइप्स किस तरह से होते हैं, वो पाइप्स होते हैं परफोरेटेड पाइप्स। और परफोरेटेड पाइप्स क्या होते हैं कि उनमें सुराख होते हैं। सुराख भी क्या होते हैं कि आधा हाफ जो टॉप पे है जो एक्सपोज हो रहा है वेस्ट को, उसमें सुराख होते हैं, जो बॉटम है उसका वो उसमें सुराख नहीं होते। तो जो टॉप से सारा लीचेड लीच डाउन होके आ रहा है वो उन होल्स के थ्रू तो एंटर हो जाएगा पाइप में, लेकिन नीचे उसके होल्स नहीं होंगे, तो इस वजह से वो कलेक्ट हो जाएगा एट द कलेक्शन सिस्टम। और वहाँ से उसको आप पंप कर लेते हैं टू दी लीचिड पॉन्ड, जो हमने पहले देखा है पिक्चर में। अब इसको मैं पढ़ लेता हूँ ज़रा। द बॉटम ऑफ ईच लैंडफिल इज टिपिकली डिजाइंड सो दैट द बॉटम सरफेस ऑफ द लैंडफिल इज स्लोप टू अ लो पॉइंट। एक तो आप उसको इंक्लिनेशन दे देते हैं, उसमें स्लोप दे देते हैं, उससे भी आपको ज़रा हेल्प हो जाती है लीचिड को एक जगह पे लेके आने के लिए। Called a sump. This is where any liquids that are trapped inside the landfill known in the waste industry as leachate are collected and removed from the landfill. The leachate collection system typically consists of a series of perforated pipes, gravel packs, and a layer of sand or gravel placed in the bottom of the landfill. Once the leachate is removed from the sump, it is typically pumped or gravity flowed to a holding tank or pond where it is either treated on site or hauled off site to a public or private wastewater treatment facility। जो मैंने पहले आपको बताया, आप इसको कलेक्ट करते हैं एक सम्प में या एक टैंक में, उसको आप उसको होल्ड डाउन करवाते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर या जितनी भी हैजर्डियस कंटेंट है वो सेटल डाउन हो जाए, और टॉप से आप वाटर को जो है वो कलेक्ट करके डिस्पोज कर दें, रिलेटिवली लेस पोल्यूटेड वाटर। या फिर आप उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसकी ऑन साइट, अगर ऑन साइट फैसिलिटी नहीं है तो ऑफ साइट। फिर आपके पास स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज आ जाता है। दिस इज एन इंजीनियर्ड सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग रेन और स्टॉर्म इवेंट्स। This is done by directing the runoff through a series of berms or ditches to holding areas known as sedimentation ponds. In these ponds, the runoff water flow is slowed down or held long enough to allow the suspension
suspended soil particles to settle out before the water is discharged off site. तो स्टॉर्म वाटर वो है जो बारिश की वजह से आ रहा है, इसको आप कलेक्ट करते हैं टेरेसेस के थ्रू, डिफरेंट जगहों पे आप इसको चैनल दे देते हैं और एक जगह पे इसको डाइवर्ट कर देते हैं, वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जितना भी सॉइल कंटेंट है उसको सेटल डाउन करवाने के लिए सेडिमेंटेशन पॉन्ड टाइप एक डिज़ाइन कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करवाते हैं। जब इसके अंदर सेटलिंग हो जाती है तो उसके बाद जो वाटर है उसको आप डिस्पोज कर देते हैं टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन नहीं है। फिर गैसेस को कलेक्ट करने के लिए भी सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है। वो कैसे है कि बैक्टीरिया इन द लैंडफिल ब्रेक डाउन द ट्रैश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज एन anaerobic process. This process produces landfill gas, which is approximately 50% methane. Since methane gas has the potential to burn or explode, it has to be removed from the landfill. तो अब वहाँ पे अगर आप उसको escape नहीं देंगे तो वो burn हो सकती है। जब inside temperature due to the बैक्टीरियल एक्टिविटी थर्मोफिलिक की तरफ जाएगा तो वहाँ पे आग भी लग सकती है। अक्सर लैंडफिल साइट्स पे, लैंडफिल साइट तो नहीं होती, अक्सर जो आपकी जगह हैं जहाँ पे आपने ओपन डंपिंग की हुई है और गर्मियों के सीज़न में और टेम्परेचर उसके फ्लैश पॉइंट से चला बढ़ जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, और वो इन गैसेस की वजह से ही आग लगती है। टेम्परेचर जो है वो एज ए इग्निशन जो है वो उसको हेल्प करता है, और गैसेस जो है वो एज ए फ्यूल उसमें हेल्प कर रही होती हैं। तो ये तो हमारे ख़ुद देखने में कई बार ये चीज़ जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, ये सुन चुके हैं अपने बड़ों से या इधर उधर से कहीं ना कहीं से हमें पता चला है। ऑल्दो नस्ट में भी इसी तरह था कि डंप साइट थी और उसके ऊपर जो है वो कैंपस बना दिया, तो उसमें भी बाज़ जगहों पे जो वेस्ट था, जब जून जुलाई का मंथ आते हैं तो उसमें फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर जब ऊपर जाता था तो कई जगहों पे खुद से ही आग लग जाती थी, जो कि बाद में फिर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो फिर यही कह रहे होते थे कि ये किसी जिन्हों ने आग लगा दी है यहाँ पे कूड़े को। जबकि होता ये था, टेक्निकल बात ये है कि वहाँ पे गैसेस जनरेट हो रही हैं फ्लैश पॉइंट से, जब ऊपर जाते हैं तो इग्निशन होती है, इग्निशन होती है तो वहाँ पे आग लग जाती है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको कहीं ना कहीं एस्केप देना ज़रूरी है। टू डू दिस अ सीरीज ऑफ पाइप्स आर एम्बेडेड विद इन द लैंडफिल टू कलेक्ट द मीथेन गैस। दिस गैस वंस कलेक्टेड कैन बी ईदर नेचुरली इवेंटेड और कंट्रोल बर्न। तो जब आपने इसको कलेक्ट कर लिया, या तो आप अगर, या तो ये इतनी कॉन्टीन्यूस है और इतनी ज़्यादा है कि आप उस फैसिलिटी पे इसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंट्रोल बर्निंग के थ्रू बर्न कर देते हैं। जब इसको बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मीथेन गैस को कलेक्ट करने के लिए होता है। फिर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग स्टेशंस मैंने आपको पहले दिखाए भी, बताए भी कि किस तरह से वो इंस्टॉल करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, उनका पर्पस क्या है। यहाँ पे उनकी मैं एलाबोरेशन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। दीज स्टेशंस आर सेट अप टू डायरेक्टली एक्सेस द and test the groundwater around the landfill for presence of leachate chemicals. Typically, a groundwater monitoring system will have a series of wells that are located up gradient of the landfill disposal area and a series of wells down gradient. The up gradient wells test the water quality before it moves under the disposal area in order to get a background analysis of the water. The down gradient wells then allow testing of the water after it has passed under the disposal area, so it can be compared to the quality of the up gradient wells to make sure that there has been no impact or contamination of the groundwater. तो जो आपका अपस्ट्रीम ग्राउंड वाटर वेल है उसकी और डाउनस्ट्रीम ग्राउंड वाटर वेल जो है, उन दोनों की जो रीडिंग्स हैं उनको कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कंटामिनेशन है या नहीं है। और अगर कंटामिनेशन है तो वो लैंडफिल साइट की वजह से है या पहले से ही आ रही थी।
तो ये आपको आइडिया हो जाता है उसकी वजह से। यहाँ तक ये डेफिनेशंस थी जो मैंने लैंडफिल साइट की आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। अगर हम इनको इनकी हेडिंग्स को रिकॉल कर लें तो दैट वुड बी अ वेरी यूज़फुल थिंग। सबसे पहले हमने सैनिटरी लैंडफिल को डिस्कस किया, फिर मैंने उसके बेसिक यूनिट को सेल को हमने डिस्कस किया, फिर डेली कवर जो सेल के ऊपर डलता है उसको हमने डिस्कस किया, उसके पर्पस देख लिए, फिर लिफ्ट का बताया कि लिफ्ट क्या होती है, बेंच और टेरेसेस क्या होती हैं बता दिया, उनको किस लिए यूज़ करते हैं, फाइनल कवर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लीच शीट क्या होता है, लैंडफिल क्लोजर क्या होता है, पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग कैसे की जाती है उसको बताया। फिर कहा कि बॉटम लाइनर क्या होते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हमें वो डिज़ाइन करके रखने चाहिए और किस तरह से हमें वो अप्लाई करने चाहिए एट द बॉटम ऑफ द लैंडफिल साइट। फिर लीचिट कलेक्शन सिस्टम हमने डिज़ाइन किया और इंस्टॉल किया और लीचिट को कलेक्ट करके ट्रीट करने के लिए भेज दिया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सेटअप हमने लगाया, मीथेन कलेक्शन सिस्टम हमने लगाने की कोशिश की, इसी तरह ग्राउंड वाटर को भी हमें मॉनिटर करने के लिए कोशिश की। ये आपके पास आ गई डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब आते हैं इनकी पिक्टोरियल एलाबोरेशन की तरफ। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अगर देखें तो ये एक आप कह लें कि क्रॉस सेक्शन टाइप आपको फिगर मैंने दिखाई है, ड्राइंग दिखाई है बेसिकली। तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये सेल है और इस सेल के ऊपर जो ये दो लाइंस के दरमियान जगह, ये डेली कवर है, ठीक है, ये डेली कवर है। ये डेली कवर प्लस वेस्ट जो है वो सेल जो है वो एक बनाता है। सेल के बाद एक और सेल है और ये आपका लैंडफिल का एरिया कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके ऊपर जो इसकी आपने ये कॉम्पैक्ट करके इसकी आपने लेवल किया, तो यहाँ तक ये आपको एक लिफ्ट आप इस पूरे एरिया को कहेंगे। उसके बाद दूसरी लिफ्ट है, फिर तीसरी लिफ्ट है, या फाइनल कवर भी आप इसको कह सकते हैं, क्लोज कर दी लैंडफिल साइड। अब देखें इसमें आपने स्लोप दी है, स्लोप दी है, यहाँ पे टेरेस भी दिया है। अब यहाँ पे जब आप लैंडफिल के लिए या ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर के डिस्चार्ज के लिए चैनल बनाना चाहेंगे तो वो इजी होगा, वो इस तरफ आप इजी ले आते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे गैस वेंट इंस्टॉल करते हैं तो वो इस सेल को या इस सेल इस के साथ मौजूद जितने भी सेल्स हैं उन सबको ऑफर करेगी कि वो गैस जो है वो एमिट कर सके। और जितने भी आपके यहाँ, तो ये एग्जांपल के तौर पे एक ही बना हुआ है, आप बहुत सारे टेरेसेस जो है वो ऊपर डेवलप कर सकते हैं और हर टेरेस के ऊपर मीथेन कलेक्शन सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से सरफेस ड्रेनेज सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। ये फेस है पूरा लैंडफिल साइट का जो डेली सेल्स को कवर कर रही है मशीनरी। यहाँ तक किसी को कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी की समझ ना आई हो तो वो काइंडली शेयर कर दे, क्योंकि इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लैंडफिल की तरफ जाना है। जी प्लीज़। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, और अगर समझ आ गई है तो CR जो है वो वेरीफाई कर दे इसको। समझ आ गई है सर। ओके, अब आ जाती हैं टाइप्स। सैनिटरी लैंडफिल की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी कि वो कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम जो है वो होता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स यूजेस अ सिंथेटिक प्लास्टिक लाइनर टू आइसोलेट द ट्रैश फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो हैं
consist of the debris generated during the construction, renovation and demolition of buildings, roads and bridges and different infrastructure in the community. Industrial waste, landfills are there are two types of industrial waste. One is non-hazardous and the other one is hazardous. Non-hazardous solid waste consists of non-hazardous waste associated with the मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो उसमें ये आप जो है वो इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी उनका वेस्ट आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है मॉइस्चर कंटेंट। अगर तो आप ड्राई लैंडफिल रख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कीप वेस्ट ड्राई टू लिमिट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी जो है मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो रुक जाएगी। अगर वो रुकेगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी और डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो आपका वेस्ट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। वेट लैंडफिल में क्या होता है, लीचिट रीसर्कुलेशन, जो अली कुरैशी ने भी बताया था कि वो लीचिट को कलेक्ट करके वापस उसके ऊपर डाल देते हैं and used to moisten the waste so that it can react as bioreactor। तो जब उसको मॉइस्चन करते हैं तो मॉइस्चर के साथ साथ वो हाई क्वांटिटी ऑफ फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है COD एंड BOD की। ये चीज़ें आपको मैं आगे वेस्ट वाटर में भी पढ़ाऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। यूजेस क्या है इन दोनों लैंडफिल्स के यूजेस क्या हैं। म्युनिसिपल हो सकती है, hazardous हो सकती है, कंट्रोल्ड लैंडफिल या को डिस्पोजल भी हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन एक और क्लासिफिकेशन है। अबव द ग्राउंड वाटर, अबव द ग्राउंड लैंडफिल या बिलो द ग्राउंड लैंडफिल। वैली या डिप्रेशन में अबव की जो होगी वो उसमें आप उसको स्लोप देते हैं, डिफरेंट स्लोप्स देते हैं। और सिस्टम्स यूज्ड इन कैलिफोर्निया क्या है, हैज़ार्डियस वेस्ट के लिए, डेजिग्नेटेड वेस्ट के लिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए ये क्लासिफिकेशंस यूज़ की जाती हैं। साइटिंग, जब आपने लैंडफिल का सोचा, फॉर एग्जांपल हमारा कराची सोच लेता है कि हम लैंडफिल बनाने लगे हैं तो उसके लिए पहले उनको साइट देखनी पड़ेगी। पहले तो वो उस जगह को ढूंढेंगे कि कहाँ पे बनानी है ना। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज साइटिंग। तो साइट की करेक्टराइजेशन उनको करनी पड़ेगी, स्ट्रेटिग्राफी देखनी पड़ेगी, उनको एक्वीफर्स देखने पड़ेंगे कि करीब कोई सरफेस वाटर बॉडीज़ तो नहीं है, ग्राउंड वाटर जो है वो एक्वीफर कितना डीप है, कहीं वो बहुत क्लोज तो नहीं है, वाटर टेबल लेवल क्या है, जियोकेमिकल कंडक्टिविटी क्या है उस इलाके की, जो सॉइल है उसकी, क्ले कितनी सराउंडिंग में मौजूद है डेली कवर के लिए। ये साइटिंग क्राइटेरिया के अंदर आपने ये चीज़ें देखनी हैं। और भी हैं, साइट को सिलेक्ट करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल लैंड एरिया कितना है इस चीज़ को देखें, इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स रिकवरी जो है उसको आप देखेंगे, हॉल डिस्टेंस कितना आपको पड़ता है वो देखेंगे, सॉइल कंडीशंस एंड टोपोग्राफी देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे उस एरिया की, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी चेक करेंगे कि फ़्लो ज़्यादा किस तरफ होता है और आपने लैंडफिल साइट किस तरफ बनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपस्ट्रीम से फ़्लो आता है बारिश का, लैंडफिल के अंदर से होके गुजर के तो आगे जाता है, आगे जी लैंडफिल साइट के बाद कोई सरफेस वाटर बॉडी है, डैम वगैरह है, कोई लेक है, कोई नेचुरल पॉन्ड है, तो उस सूरत हाल में भी आपकी वो साइट जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी। जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, पोटेंशियल अल्टीमेट यूजेस फॉर द कंप्लीटेड साइट हैं कि आप कंप्लीट करने के बाद इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे इतनी जगह को। फिर नॉट इन माय बैकयार्ड वाला जो सेंटिमेंट था वो भी आ जाता है कि एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे आप लोगों को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर ऑपरेट करेंगे और ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमारे पास और कोई जगह नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन देखी हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे हैं और हमारा प्रॉब्लम बड़ा है पूरे मुल्क का। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अकोमोडेट करें, कॉम्पनसेट करें और कोशिश करें कि हम इसके ऑपरेशंस को ऐसा रखें कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको ना हो।
पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये पॉपुलेशन से दूर बनाते हैं, क्योंकि 25-30 किलोमीटर शहर से बाहर इसी वजह से जाते हैं। इसके अलावा कुछ फर्टल फ्लाज हैं जो अगर आप नहीं देखते तो क्या होता है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप GIS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने इसके ऊपर CPD एक्टिविटी भी करवाई कि आप लेयर्स बना लेते हैं और उन लेयर्स को आप मर्ज जब करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी जगह अवेलेबल हो सकती है एक एरिया में जो वेजिटेशन को भी ख़राब ना करे, सरफेस वाटर बॉडीज़ को भी डिस्टर्ब ना करे, कोई सेक्रेड एरिया है, कोई डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ का एरिया है, कोई और मसले मसाइल वाली जगह है, तो वो सारी की सारी लेयर्स के थ्रू आप बीच में इंडिकेट करते जाते हैं। और जो फिर बच जाती है इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद, उस जगह पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या फिजिबिलिटी है फॉर द डेवलपमेंट और द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंडफिल साइट। वो जो फ्लाज मैं बता रहा था वो ये हो सकते हैं कि आपने डिज़ाइन करने के लिए सिलेक्ट तो कर लिए जगह, बट इट इज़ टू स्मॉल। जैसे मुल्तान में हुआ कि उन्होंने छोटी सी लैंडफिल बनाई जो 5 साल के लिए चली, अब बंद हो गई है। 5 साल का टाइम कम्युनिटी के कामों के लिए क्या चीज़ है। द साइट इज़ ऑन अ फ्लड प्लेन, आपको पता है कि यहाँ से फ्लड का पानी जो है वो गुजरता है, जब भी फ्लड आता है तो फिर आपने वहाँ पे बना दी, तो ये भी एक आपका फ्लॉ। दिस साइट इंक्लूड्स वेटलैंड्स, तो उससे तो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होगा। अ सिस्मिक जोन इज विद इन 200 फीट ऑफ द साइट, तो अर्थक्वेक को भी आपने कंसीडर करना है। इसी तरह से एन एंडेंजर्ड स्पीशीज हैबिटेट इज ऑन द साइट। द साइट इज टू क्लोज टू एन एयरपोर्ट, उसकी लिमिट क्या है कि 5000 फीट जो है प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के लिए और 10,000 फीट जो है वो टर्बाइन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए लिमिट है, इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। द साइट इज एन इन एन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपने डिस्पोजल साइट वहाँ चूज़ की है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रह रही है। द साइट इंक्लूड्स सेक्रेड लैंड्स, द साइट इंक्लूड्स अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एरियाज, unsuitable soil conditions that is peat, bogs, sandy exist on the site। तो इन चीज़ों का भी जहन में ख्याल रखना है ताकि आपकी लैंडफिल साइट जो है उसकी साइटिंग या प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो। फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, इनको हम देख लेते हैं। लैंडफिल साइट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। Where land is available, a sanitary landfill is usually the most economical method of solid waste disposal। अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो सबसे इकोनॉमिकल है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज सूटेबल लैंड में नॉट बी अवेलेबल विद इन द इकोनॉमिकल हॉलिंग डिस्टेंस। तो कहते हैं जो आपके एरियाज हैं, जैसे आपके बड़े शहर हैं, इनके सराउंडिंग में तो सूटेबल लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो चाहिए होती है वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। आप जितना दूर जाएंगे इतनी हॉलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा बेनिफिट, और उसके अगेंस्ट उसका डिसएडवांटेज। बेनिफिट ये है कि द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ लो कंपेयर्ड विद द अदर डिस्पोजल मेथड। अगर आप अदर डिस्पोजल मेथड की तरफ जाते हैं, इंसिनरेशन की तरफ जाते हैं, पायरोलिसिस की तरफ जाते हैं, या कोई और मेथड आप लेके आते हैं, तो उसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जबकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, लो आपका कैपिटल कॉस्ट है। प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल स्टैंडर्ड्स मस्ट बी एडहियर टू डेली और द ऑपरेशन मे रिजल्ट इन एन ओपन डंप। तो ये आपको डेली के डेली देखना पड़ेगा, आपका डेली कवर जो है उसको देखना पड़ेगा। थर्ड वन इज a sanitary landfill is a complete or final disposal method as compared to incineration and composting, which require additional treatment or disposal operations for residue, quenching water, unusable material।
तो इसका एक ये बेनिफिट है कि ये अल्टीमेट डिस्पोजल है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। जबकि सेंट्री लैंडफिल्स लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरियाज कैन प्रोवोक एक्सट्रीम पब्लिक ऑपोजिशन, ये इसका डिसएडवांटेज है, लोगों का एहतजाज हो सकता है कि जी इसको यहाँ से ख़त्म करें। A sanitary landfill can receive all types of solid waste, eliminating the necessity of separate collections. ठीक है, हर तरह का वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके इसने चूँकि डंप ही करना है तो इसमें कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। अ कंप्लीटेड लैंडफिल विल सेटल एंड रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस, तो ये सेटल डाउन होती है जब, तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है फिर आपको। A sanitary landfill is flexible. Increased quantities of solid waste can be disposed of with little additional personnel and equipment. तो अगर किसी दिन ज़्यादा वेस्ट भी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको इजीली अकोमोडेट कर लेते हैं। जबकि स्पेशल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन कंप्लीटेड लैंडफिल बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट फैक्टर। अगर आप लैंडफिल को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर कोई आप और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो आपको ज़रा सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे डिस्पोज वेस्ट जो है वो अगर डिकम्पोज होता है तो उसकी वजह से गैस जनरेट हो सकती है और सेटल डाउन हो सकती हैं चीज़ें। सब मार्जिनल लैंड में बी रिक्लेम्ड फॉर यूज एज पार्किंग लॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, गोल्फ कोर्स एंड एयरपोर्ट्स, तो ये उसके बाद ये काम किए जा सकते हैं। मीथेन एंड एक्सप्लोसिव गैस एंड द अदर gases produced from the decomposition of the waste may become a hazard or nuisance and interfere with the use of the completed landfill. तो ये आपके पास एक्सप्लोसिव गैस है, इसको आपने ऑब्वियसली मीथेन गैस कलेक्शन सिस्टम के थ्रू कलेक्ट कर लेना, अदरवाइज ये एक स्किलफुल लेबर अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर हम इसको जाएं डेफिनेशन वाइज डंप से सैनिटरी लैंडफिल की तरफ, तो डंप इज़ अनकंट्रोल्ड डंप कॉजिंग हैजर्ड टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड लैंडफिल में डंप विद कवरिंग ऑफ वेस्ट, सिर्फ टॉप कवर देंगे तो कंट्रोल्ड लैंडफिल है। इंजीनियर्ड लैंडफिल इज़ कंट्रोल्ड लैंडफिल प्लस इंजीनियर्ड मेजर्स टू लिमिट द इम्पैक्ट। सैनिटरी लैंडफिल कहती है कि इंजीनियर्ड लैंडफिल भी आप इसमें लगाएं, लैंडफिल गैस एक्सट्रैक्शन लगाएं, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग करें, हाईली ट्रेंड स्टाफ रखें एंड वाटर ट्रीटमेंट पॉलिसी जो है, फैसिलिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये डिफरेंसेस आपने देख लिए हैं, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे लेता हूँ ताकि आप मेरी बात सुनने के साथ साथ आप खुद भी इसको एक बार जो है गो थ्रू कर लिया करें। इम्पैक्ट्स फ्रॉम डंप्स, जो हमारे पूरे मुल्क में अभी तक सिचुएशन चल रही है, जो प्रैक्टिस चल रही है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? इट्स प्रेजेंस, एरिया नीड, विजुअल इम्पैक्ट, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट जो है वो इशू होता है, नॉइस एंड एयर का प्रॉब्लम होता है। वेस्ट अट्रैक्ट्स एनिमल्स, वेस्ट एमिट्स लैंडफिल गैसेस, वेस्ट एमिट्स डस्ट एंड अदर मटीरियल्स, वेस्ट एमिट्स pollutant water impacting soil, surface water and groundwater, drinking water problems. इस फिगर में अगर आप देखें तो ब्लू कलर के जो एरोज हैं वो वाटर कंटेंट है जो आपकी लैंडफिल के ऊपर साइड पे या बिलो जा रहा है, इसको पास करने लगा या इसके अंदर मिक्सअप होने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो रेड कलर की जो हैं एरोज हैं वो कुछ ना कुछ इसमें से पास डाउन होके एमिट होने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास ग्राउंड वाटर है, अगर लीच डाउन हो रहा है तो ये पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर बन जाएगा। ये सरफेस वाटर है, अगर इसके अंदर लीचेट है और आपने इसको प्रॉपर कवर नहीं किया हुआ तो पोल्यूटेड सरफेस वाटर, ये भी पोल्यूट हो जाएगा।
ये रेन वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट ऐड हुआ, इसकी वजह से लीचेट नीचे जा रहा है। रेन वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट ऐड हुआ, एक्टिविटी बढ़ी तो फिर लैंडफिल गैसेस, ओडोर, डस्ट एंड नॉइस जो है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो जनरेट होगा तो फिर आपको उसको भी कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेंगी या मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद आपके पास जो है जो डंप साइट है या जो डंप्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद आपके पास लैंडफिल का डिज़ाइन आ जाता है। और लैंडफिल का डिज़ाइन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। और लैंडफिल को किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, एरिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपको मैं 3 to 4 मिनट्स की ब्रेक दे देता हूँ, तो आप उसमें थोड़ा सा कोई अगर किसी ने कोई काम है, रिलैक्स होना है तो वो बोले, उसके बाद फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। 5 मिनट्स की ब्रेक है आपको, ठीक है?
हाँ जी, रिज्यूम करें हम। अनवर, क्लास कब है आपकी? 11:50 सर। अच्छा, ठीक है। लैंडफिल डिज़ाइन में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस तरह से उसको प्लेस कैसे करते हैं लैंडफिल को। फॉर एग्जांपल, इट्स अ ग्लोबल प्रैक्टिस टू हैव लैंडफिल अबव द ग्राउंड लेवल्स। 5% ऑफ द टोटल लैंडफिल्स, ऑलमोस्ट 5% जो है वो इस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। दूसरी कैटेगरी आपके पास 25% है जो बिलो द ग्राउंड लैंडफिल्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं। Then we have the in between category, which is covering almost 70% of the total landfills, और यही सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ एक्सकेवेशन कर लेते हैं और कुछ जो है वो पाइल अप कर लेते हैं अबव द ग्राउंड। तो इस तरह से आपका एक कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हो जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंडफिल। और ये डिज़ाइन जो है वो सूटेबल इस वजह से भी रहता है कि सेटलमेंट्स भी आपकी एक पैटर्नाइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सेटलमेंट होगी तो वो टोटली अबव द ग्राउंड होगा, यहाँ पे होगी तो आपको ऊपर से फिर और उसमें वेस्ट ऐड करना पड़ेगा टू कवर दैट सेटलमेंट एंड डिकम्पोजिशन। और इस सेटअप में आपको जो है वो ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा इजी जो है वो आप फील करते हैं। तो इसमें जो है वो 70% जो है वो ये पैटर्न है। और अगर आप लैंडफिल को डिज़ाइन करने जा रहे हैं या कहीं पे कोई इस तरह की एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कितने लोग हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं? आप सिर्फ अपने कोई इंडिकेशन दे दें ताकि उससे मुझे आइडिया हो जाए। वन टू थ्री फोर। शाज़रे, ज़ुनैरा, अली, तैयब। अच्छा, पूछने का मकसद ये है कि रिसेंटली आई हैड अ कॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज लाइक trying to develop or construct a landfill site as a model in at their facility रावलपिंडी में ही। तो मैं उस वक्त तो उनको मैंने यही कहा था कि वी कैन do this for you, and it can be a wonderful experience in terms of the application of a real design to the landfill site। और एक स्मॉलर लेवल है तो उससे कंट्रोल भी ज़रा ज़्यादा हो जाएगा और एक अच्छा जो मॉडल है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट आगे चलता है तो मे बी आप लोगों को जो साइड एरियाज़ में या यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो उनको भी विज़िट करने के लिए जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा। उनको किसी वक्त टाइम मिलता है तो वो उसको विज़िट कर लें, और अगर कहीं पे वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स एक बहुत अच्छी चीज़ है कि instead of going for a complete process for developing a new landfill site, right, starting from the siting and planning and approvals and then construction and operation and monitoring, you just expand the existing landfill site
जिसको आपने अपनी फोरसीन लॉजिक के थ्रू आपने पहले ही ऐसी जगह पे डिज़ाइन किया था कि जहाँ पे एक्सपेंशन का मार्जिन हो, तो आप बहुत सारे कामों से बच जाते हैं और आप अपनी एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स जो हैं उनको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब वो एक्सपेंड हो जाती हैं तो उससे थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ a landfill site, and it is becoming more common. Often the most cost effective strategy is the expansion of existing landfills. इसके अलावा ओशियन डंपिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाज कॉमनली यूज्ड at the turn of the 20th century and continued until 1933, when it was prohibited by a US Supreme Court decision involving New York City. Some industrial solid waste are still discharged at sea, however, and recently the concept of using the ocean floor as a waste storage location has received some attention. Based on the past experiences in the cities throughout the world, land disposal is the form of a sanitary landfill has proved to be the most economical and acceptable method for the disposal of solid waste. In USA, it takes almost 10 years to get through the process of opening a new landfill. अगर यूएस में अगर इतना टाइम लगता है तो फिर यहाँ पे तो आप सोच लें, CDA is trying to get the approval for the landfill site since 2009-10, ठीक है, तो अभी तक उनको अप्रूवल ही नहीं मिली। तो ओपनिंग ऑफ अ लैंडफिल तो बहुत बाद की बात है, ओपनिंग तो आपकी वो कंस्ट्रक्शन के बाद होगी ना, तो अप्रूवल ही ना मिले तो आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा या ओपनिंग नहीं होगी। मतलब यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इट्स an area which is offering a lot more gaps in the policy as well as the execution of those policies. तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि आप लोग इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपना कंसर्न जो है वो आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को शो कर सकते हैं, और इवन इन डिपार्टमेंट्स में आप एज ए प्रोफेशनल जो है वो काम भी कर सकते हैं। फिर जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं कि हमने लैंडफिल जो है अबव द ग्राउंड बनानी है, बिलो द ग्राउंड बनानी है, या फिर हमने इसको इन बिटवीन बनाना है, तो उसके लिए देयर आर फ्यू मेथड्स, उन मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। और एक चीज़ जो है वो मैं दोनों कोर्सेज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ऑलमोस्ट हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हर कोर्स में यही होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं वो हम कम्युनिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, हम पायलट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर हम जो है वो जो मेथड्स होते हैं उनमें से हम जो मोर कॉम्प्लेक्स मेथड होता है वो हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ट्रीटमेंट में मैं अगर ये सिलेक्ट कर लूँ कि हम स्वात रीजन के पानी को जो है वो ट्रीट करने जा रहे हैं, तो उसमें खाली डिसइंफेक्शन करनी पड़ेगी, बस डिसइंफेक्शन करें और पी जाएं बस। तो बाकी सारे जितने हम प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, वो सारी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा है नहीं, हम ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हम अज्यूम करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को पढ़ें, ताकि बाद में अगर किसी स्टेज पे किसी एरिया में आप उस पूरी चीज़ को अप्लाई करने की बजाय उसमें से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप्स भी अप्लाई करना चाहें तो आपको सारे आते हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे तीन मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने शेयर किए हुए हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जो सबसे ज़्यादा वैलिड मेथड है हम उसकी डिटेल्स में जाएंगे। To use the available area at a landfill site effectively, a plan of operation for the placement of solid waste must be prepared. तो ये प्लान के बगैर तो बन नहीं सकती ना, आपके पास प्लान ही ना हो कि कहाँ पे कौन सी टाइप का वेस्ट आपने डिस्पोज करना है, कौन से फेस से आपने स्टार्ट करना है और किस तरफ आप फिल करते जाएंगे, कब आपकी लिफ्ट कंप्लीट होगी, लिफ्ट के बाद आप सेकंड लिफ्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसका पैटर्न क्या रखेंगे, सिमिलर रखेंगे या चेंज करेंगे, उसको रोज एंड कॉलम्स बना देंगे,
या आप एज इट इज़ उसको रखेंगे, या आप टेरेसेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टेरेसेस के अलावा आप डेली कवर का क्या कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो है, इस सारे ऑपरेशन को जब आप प्लान नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, इसको एक मैनुअल नहीं बना के रखेंगे, तो फिर आपके लिए लैंडफिल को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़, अगर आप इस चीज़ को बना लेते हैं और कल को आपकी कहीं स्विच भी कर लेते हैं जॉब, तो जो नए आने वाले लोग होंगे या जो उसको फर्दर जो संभालने वाले लोग होंगे, उनके लिए मसला नहीं होगा। उनके लिए आपने एक ऑलरेडी गाइड जो है वो प्रिपेयर कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, मैं था तो ये काम जो है मैं सही करता रहा, और बाद में मैं जाऊंगा तो मैं अपनी चीज़ें साथ ले जाऊंगा, मैं इनको कुछ भी नहीं दे के जाऊंगा। तो वो फिर आप कम्युनिटी के साथ या प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। उस चीज़ को फिर आप जस्टिफाई इस तरह से नहीं कर सकते कि नहीं, मैं मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी और उनकी बुरी थी। आपने काम किया थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंडफिल, तो आपको पता चल गया सारी चीज़ों का। अब जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली सबको नहीं मिल सकती थी, तो जिन लोगों को नहीं मिली तो उनका क्या कसूर है कि आप या मैं या कोई भी प्रोफेशनल उनको वो डॉक्यूमेंट्स ना दे जिनके अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो दैट प्लान मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। Various operational methods have been developed primarily on the basis of field experiences. तो ये field experiences की base पे methods जो हैं develop किए गए हैं. The methods used to fill dry areas are substantially different from those used to fill the wet areas. एक ही लैंडफिल में डिफरेंट एरियाज हैं आपके पास। ड्राई एरिया को आप किसी और मेथड से फिल कर सकते हैं, वेट एरिया को किसी और मेथड से फिल करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल मेथड्स यूज फॉर द लैंड फिलिंग ड्राई एरियाज मे बी क्लासिफाइड एज एरिया, ट्रेंच एंड डिप्रेशन मेथड। एरिया मेथड है ये सबसे कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसके अलावा जो है वो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो है ट्रेंच एंड डिप्रेशन की हम एरिया के बाद देख लेंगे। एरिया मेथड में वो कहता है इट इज यूज्ड व्हेन द टेरेन इज अनसूटेबल फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ द ट्रेंचेस। जो सेकंड मेथड है उसको कंडक्ट करने के लिए एरिया ठीक नहीं है, तो इस वजह से आप एरिया मेथड यूज करते हैं। Operationally, the waste are unloaded and spread in long, narrow strips in a series of layers that vary in depth from 16 to 30 inches. तो अब वो वही कह रहे हैं कि आप अपने वेस्ट को ऑपरेशन जब करते हैं इस लैंडफिल साइट पे या इस एरिया मेथड में, तो आप करते क्या है बेसिकली कि आप लिफ्ट बनाते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो 16 टू 30 इंचेस हो सकती है। और मतलब आप इसको 2 to 3 फीट्स कह सकते हैं कि 2 to 3 फीट्स की एक लिफ्ट होती है, और उसके बाद फिर आप अगली लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। Each layer is compacted until the thickness of the compacted waste reaches a height of 6 to 10 feet. अब आप वो जो लिफ्ट बना रहे थे 2 to 3 फीट की, उसके ऊपर आप उसको स्प्रेड करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक और डेवलप करते हैं। तो इस तरह कॉम्पैक्शन के बाद जो आपका फाइनल एक लिफ्ट का जो राइज है दैट मस्ट बी अराउंड 6 to 10 फीट। और उस 6 to 10 फीट के ऊपर फिर 6 to 12 इंच लेयर ऑफ कवर मटेरियल इज प्लेस्ड over the completed fill. The cover material must be hauled in from adjacent land or from borrow pit areas. The filling operation usually is started by building an earthen levee against which wastes are placed in these layers and compacted. The length of the unloading area varies with the site conditions and the size of the operation. The width over which the wastes are compacted varies from 8 to 20 feet, again depending on the terrain. तो कितनी लेंथ तक आपने उसको वेस्ट को स्प्रेड करना है, कितनी विड्थ आपने फेस की रखनी है और उसको लेके चलना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट लिफ्ट,
ये डिपेंड करता है आपके, ये टोटली डिपेंड करता है, इसमें आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सकते। ये टोटली डिपेंड करता है उस टेरन का, उस साइट का, उस एरिया का जहाँ पे वो लैंडफिल साइट जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। तो उसके हिसाब से जितनी लेंथ होगी उतनी ही उसकी वो लेंथ हो आपको कवर करनी पड़ेगी। और जितनी विड्थ है, अगर वो टू पोर्शंस में आप लेके जाना चाहते हैं तो पहले हाफ को करेंगे कवर, फिर दूसरे हाफ को, तब जाके एक लिफ्ट बनेगी। और अगर आप सब सारी को इकट्ठा ही लेके जाना चाहते हैं तो आप सारी को इकट्ठा भी लेके जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन कि कितना बड़ा सिटी है, वेस्ट कितना आ रहा है, और उसके अलावा कितनी जगह है, और मशीनरी कितनी है, मैन पावर कितनी है, जगह की टाइप किस तरह की है। तो ये सारा, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करती हैं ये चीज़ें जितनी भी हैं। सेल और ट्रेंच मेथड क्या होता है? सेल या ट्रेंच मेथड जो है स्मॉल कम्युनिटीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। इट इज़ यूज व्हेन प्लेंटी ऑफ कवर मटेरियल एंड वाटर टेबल नॉट नियर द सरफेस। कवर मटेरियल मौजूद है और वाटर मटीरियल जो है, वाटर टेबल वो भी बहुत ज़्यादा बिलो है, तो इस वजह से आप एक्सकेवेशन कर सकते हैं। Solid waste are placed in cells or trenches excavated in the soil. The soil excavated from the site is used for daily and final cover. Cells are typically square up to 1,000 feet long. Side slopes are of 1.5 to 1 to 2 to 1. Trenches 200 to 1,000 feet long, 3 to 10 feet deep, not too deep as to present a safety hazard for burial, and 15 to 5 to 15 feet wide to enable equipment turn around. तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई कि अगर आप किसी भी जगह पे ट्रेंच मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 200 से लेके 1000 तक आप उसकी लेंथ रख सकते हैं। 3 से 10 फीट तक आप उसकी जो है वो डेप्थ रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी अदर फैक्टर्स के कितना डीप है ग्राउंड वाटर और कितना वेस्ट है उसके हिसाब से। और इसी तरह से 5 to 15 फीट जो है वो वाइड भी हो सकती है। तो ये एक्सकवेशन हैं, एक्सकवेट करते हैं सॉइल को और लैंड को, और उसके अंदर वेस्ट को डंप करते हैं। ऊपर से जो एक्सकवेटेड सॉइल थी उसी के साथ इसको आप डेली कवर के तौर पे उसको कवर कर देते हैं, और वो फिर आपकी एनवायरनमेंट से आइसोलेट हो जाती है। ये ज़्यादा आप ये कह लें कि सस्टेनेबल वे नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑपरेट नहीं कर सकते आप इसको, बल्कि ये एक सिंपल सा मेथड है जो स्मॉल कम्युनिटीज़ के लिए फॉर फ्यू इयर्स जो है वो ये सिर्फ काम किया जा सकता है। फिर थर्ड मेथड है कैनियन और डिप्रेशन। ये नेचुरल डिपोजिशंस, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे filling of solid waste in canyon, ravines, dry burrow pits and quarries. Control of surface drainage is a critical factor. Typically, filling for each lift starts at the head end of the canyon and ends at mouth so as to prevent the accumulation of water behind the landfill. तो ये होता ही है कि जैसे आपकी है ना, जो डिप्रेशंस हैं, जो नेचुरल डिप्रेशंस हैं किसी भी जगह पे, दो पहाड़ों के दरमियान या किसी और रीजन में किसी भी जगह पे नेचुरल डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन में आप जो है वो वेस्ट जो है वो डंप करते रहते हैं और उसको जो है फिर वो कवर मटेरियल भी देते रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा एक आप कह लें कि आपको आइडिया हो जाता है कि कैनियन या डिप्रेशन मेथड जो है इसको हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिली एरियाज़ में ये मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं किया जा सकता। और इससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो ऊपर से आ रहा है, एक तो जो ऊपर से आ रहा है रेनफॉल हो रही है, उससे जो सरफेस वाटर है वो डिप्लीट होगा और उसी से फिर ग्राउंड वाटर जो है उसको भी कंटामिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉर ईयर्स वहाँ पे मौजूद रहता है वेस्ट। तो इससे फिर जो है कंटामिनेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसको हम कोई कवर मटेरियल ऐसा दे नहीं रहे होते।
तो इस वजह से यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कंटामिनेशन के। फिर ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्योंकि इस वक्त ये करवाना मतलब आपको समझ ना आने वाली बात है। तो ये 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने उसकी क्लासिफिकेशंस और उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हमने डिस्कस की हैं। आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप लोग इस चीज़ को जो है वो साइड बाय साइड साथ के साथ करते रहें, ताकि बाद में फिर आपको जब आपने प्रेजेंटेशंस देनी है अपने प्रोजेक्ट्स की, तो उस वक्त फिर आपको कोई किसी किस्म का इशू ना हो टाइम का। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसकी जो बेसिक्स हैं अगर इनकी समझ आई तो आगे जो टेक्निकलिटीज़ आनी है इन टर्म्स ऑफ मीथेन रिकवरी एंड मीथेन जनरेशन, लीचिट रिकवरी एंड लीचिट जनरेशन, इसकी डिज़ाइनिंग, एरिया कैलकुलेशन और इसका क्लोयर और इसकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग्स, तो उस वक्त फिर आपको इश्यूज हो सकते हैं। अभी तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो आज डिस्कस की हैं इसकी। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसके क्लोजर तक जाएंगे और पोस्ट क्लोजर थिंग्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन, and I would also wish best of luck for the coming things which are on way. ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को भी वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल राइट अनवर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अनवर। ठीक है।